हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. We have studied about the electronic configuration, chemical properties, periodic trains in different physical properties, chemical reactions, catenation. All these things are over. Now next topic is allotropy. नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉपी. एलोट्रॉप, उसको उर्दू में हम बहरूपिया कहते हैं. हाउ विल यू डिफाइन एलोट्रॉप? व्हेन अ सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स with different physical properties such as color, density, melting point. The phenomenon is called allotropy and the individual form is called allotrop. इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन का एग्जाम्पल. यू नो कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन, ग्रेफीन, like this. These are different allotropes of carbon. अब जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स को हमको देखना है इसमें. What is the meaning of allotrop? Allotropy, it is the phenomenon when a solid element exists in different crystalline forms with different physical properties such as color, density, melting point. It is known as allotropy and the individual form is called allotrop. ठीक है, जो कार्बन है, कार्बन के सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स हैं. इसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बन नैनोट्यूब्स है, ग्रेफीन है. ऑल दीज आर डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स कार्बन के मिलते हैं. हियर वी हैव टू स्टडी एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस. यहाँ पे हमको फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स को देखना है. फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स. द फॉस्फोरस इज फाउंड इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड द इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स आर व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस. इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स आर व्हाइट एंड रेड. ये दोनों इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं फॉस्फोरस के. सो दीज आर डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ phosphorus. White, it is also known as yellow phosphorus. White को हम yellow phosphorus भी कहेंगे और जो दूसरा रहेगा that is red phosphorus. इसका एक एलोट्रॉप ब्लैक फॉस्फोरस भी है. यहाँ पे हमको दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को स्टडी करना है फॉस्फोरस के and these are white and red phosphorus. White phosphorus. White phosphorus consists of tetrahedral P4 molecules. Tetrahedral P4 molecules. And the PPP. This bond angle is of the order of 60 degree. It is about the white phosphorus. It is the structure of white phosphorus. And white phosphorus is less stable and you can see this figure. It is the structure of white phosphorus. ये P4 unit है. 4 phosphorus atoms are tetrahedrally arranged and the PPP, this bond angle is of the order of 60 degree. Now next allotrop of phosphorus, it is red phosphorus. Red phosphorus consists of chains of P4 tetrahedra. It is the red phosphorus. यहाँ पे ये टेट्राहेड्रा यूनिट्स हैं. ये सब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है इसको सपोज हम ओपन कर देते हैं और ये एक दूसरे से ज्वाइन होते जाएंगे. इट इज पॉलीमेरिक इन नेचर. कई सारे P4 यूनिट्स ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ एंड पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएंगे ये. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस. अब इनमें जो डिस्टिंग्विशिंग का पॉइंट आ सकता है
that is distinguish between white phosphorus and red phosphorus. It is about the white phosphorus. ये white phosphorus के बारे में रहेगा, और जो red phosphorus रहेगा, different P4 units are joined together and form polymeric form. And the white phosphorus, this white phosphorus is translucent white waxy solid, and it glows in dark, अंधेरे में चमकता है ये. It is insoluble in water but dissolves in boiling NaOH solution and it is poisonous. अब जो रेड फॉस्फोरस रहेगा, that is stable and less reactive. It is odorless and possess iron gray luster. It does not glow in dark. It is insoluble in water and it is non-poisonous. So these are distinguishing points of white phosphorus and red phosphorus. इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस. 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पर. नाउ सो इट इज अबाउट द एलोट्रॉपी. फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की स्टडी हमको करना है. नाउ 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये इसके ऊपर. नाउ नेक्स्ट इज molecular structures of some important compounds. Molecular structures of some important compounds of group number 13, 14 and 15. अब इसमें जो कंपाउंड्स भी हमको स्टडी करना है, दैट इज दोज कंपाउंड्स आर बोरॉन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन ऑर्थोबोरिक एसिड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑल दीज कंपाउंड्स वी हैव टू स्टडी ऑल दीज कंपाउंड्स. सो फर्स्ट कंपाउंड, इट इज द बोरॉन ट्राइक्लोराइड. इट इज द boron trichloride. Its formula is BCl3, boron trichloride. अब जो बोरॉन है, बोरॉन इज ट्राइवेलेंट. बोरॉन ट्राइक्लोराइड इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड बोरॉन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जो बोरॉन एटम रहेगा that is sp2 hybridized. अब sp2 hybridization कैसे देखेंगे हम? atomic number of boron is 5, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है. this electronic configuration is ground state electronic configuration. इसका बॉक्स डायग्राम हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. 1s2, 2s2, it is 2p1. This electronic configuration is ground state electronic configuration. During excitation, one of the 2s electron shifts to empty p orbital. Therefore, excited state electronic configuration becomes 1s2, 2s1 and 2p2. This electronic configuration is excited state electronic configuration. Now these orbitals, 1 s orbital and 2 p orbitals mix together and form 3 sp2 hybrid orbitals. 3 sp2 hybrid orbitals, each containing unpaired electrons. ये हर एक ऑर्बिटल, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है विच इज इन अनपेयर्ड कंडीशन. अब यहाँ पे जो बोरॉन, इसके बोरॉन का कॉम्बिनेशन होगा क्लोरीन के साथ. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा 3s2 3p5 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और अगर आप लिखेंगे इसका कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
it is like this. Neon 3s2 3p5. In outermost orbital 7 electrons are present. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है. अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ऑक्टेट मीन्स आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन लग रहे. ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 ये 7. ठीक है. नाउ इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बोरॉन सेंटर में लेते हैं हम. दीज आर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इसमें हर एक में एक इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे एक क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7. ये दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 ये 7. ये थर्ड क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. अब यहाँ पे ये बॉन्डिंग हुई इनमें. इट इज वन कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अनदर कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज थर्ड कोवैलेंट बॉन्ड. सो दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड दिस मॉलिक्यूल इज बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल एंड इट इज नॉन पोलर ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल. ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है. द एक्चुअल फिगर इज लाइक दिस. इट इज one molecule of boron trichloride. As boron undergoes sp2 hybridization, bond angle is of the order of 120 degree. So it is the structure of बोरॉन ट्राइक्लोराइड. ये स्ट्रक्चर है. और फॉर्मेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा. बोरॉन से लेके यहाँ तक आपको लिखना रहेगा. सो इट इज अबाउट द बोरॉन ट्राइक्लोराइड. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड. नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, दीज टू आर ग्रुप नंबर 13 elements. Aluminium chloride AlCl3 and aluminium atom in aluminium chloride is sp2 hybridized. इसमें भी जो aluminium रहेगा it undergoes sp2 hybridization and with one vacant unhybrid p orbital. यहाँ पे एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड कंडीशन में p ऑर्बिटल भी मिलेगा. एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ये जो AlCl3 है इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म. इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म. डायमेरिक फॉर्म मतलब 2 यूनिट्स कैन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म दिस सिंगल मॉलिक्यूल Al2Cl6. ठीक है. एंड दिस dimer it is formed by overlap of vacant 3d orbital of aluminium. This dimer is formed by overlapping of vacant 3d orbital of aluminium with a lone pair of electrons of chlorine. यहाँ पे है it is Cl, it is Cl. यहाँ पे लिखते हैं हम Cl and it is the Cl. Cl Cl. It is the bond and it is like this. It is the bond and it is like this. ये जो एरो ये ड्रॉ किया गया है ये किसके लिए है. यहाँ पे जो डायमर है दिस डायमर इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. जो क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उसके ऊपर ये जो वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा ये ओवरलैप करेगा. देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन, ये 7th इलेक्ट्रॉन और ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर ये एक बॉन्ड बना लिए. यहाँ पे 1 एंड लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो एक पेयर है यहाँ का एक पेयर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाए यहाँ पे. और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट ओवरलैप्स विथ वैकेंट 3d ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म. डायमेरिक फॉर्म है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Al2Cl6. नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड.
ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला है H3BO3। बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, इट्स फॉर्मूला इज H3BO3 एंड दिस ऑर्थोबोरिक एसिड हैज सेंट्रल बोरॉन। ये सेंटर में ये एक बोरॉन मिलेगा एंड दिस सेंट्रल बोरॉन एटम इज बाउंडेड टू 3 OH ग्रुप्स। 3 OH ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये एक OH ग्रुप है, देन इट इज अनदर OH ग्रुप एंड इट इज नेक्स्ट OH ग्रुप 1, 2 और ये 3। ये 3 बॉन्ड्स बने। अब यहाँ पे दूसरा जो आएगा यही वाला यूनिट H3BO3, जब ये सेकंड यूनिट आएगा, दीज आर ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये ज्वाइन होते जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये B, ये OH एक ग्रुप और यहाँ पे ये बोरॉन है, यहाँ पे ये OH एक ग्रुप, ये बोरॉन और यहाँ पे ये तीसरा। जब यहाँ पे ये दूसरा बोरॉन आएगा, इसके साथ यहाँ पे इट इज लाइक दिस, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक दूसरा यूनिट आएगा OH का, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये H, ये थर्ड और यहाँ पे ये एक H। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन रहेगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर बोरॉन। ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड हैज लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा इन विच ट्रायगोनल प्लेनर H3BO3 units are joined together by hydrogen bond. So it is about the boric acid. Next molecule is boric acid. एक 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली इसके ऊपर बनता है। नाउ नेक्स्ट है डायबोरेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज डायबोरेन मॉलिक्यूल। डायबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। डायबोरेन इट इज B2H6। अब यहाँ पे जो बोरॉन है, बोरॉन, ये बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। This is ground state electronic configuration. During excitation, one of the 2s electron shifts to empty p orbital. It is the excited state electronic configuration. Now this boron undergoes sp3 hybridization and there is a formation of 4 equivalent sp3 hybrid orbitals. 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energy. Each 4 out of these 4 sp3 hybrid orbitals, 1 sp3 hybrid orbital is vacant and 3 sp3 hybrid orbitals occupy unpaired electron. एक ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट। अब 2 बोरॉन है यहाँ पे, देखिए 1 और ये 2 सेकंड बोरॉन। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 ये 2, इट इज थर्ड। एक बोरॉन का होगा, दूसरे बोरॉन का 1 2 इट इज 3। हाँ, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन से हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल एंड दैट ऑर्बिटल इज s ऑर्बिटल। One of the
3 hybrid orbital of 1 boron overlaps with 1s orbital of 1 hydrogen atom. ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई. इट इज सेकंड हाइड्रोजन एटम 1, ये 2, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे हो गई. देन इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ, ये 4 हो गए. अब यहाँ पे ये जो ये एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इसको कहा जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ये यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया इतना. अब क्या होगा, जो रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनका जो A1s ऑर्बिटल रहेगा, 1s ऑर्बिटल simultaneously overlap with half-filled hybrid orbital of 1 boron, half-filled hybrid orbital of 1 boron and the vacant hybrid orbital of the other boron. देखो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग ये इसकी हो गई. अब यहाँ पे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे. यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये पेयरिंग यहाँ पे हो गई. अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको इस तरह हम ड्रॉ कर देंगे. इट इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. अब यहाँ पे बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, इट इज हाइड्रोजन, इट इज हाइड्रोजन. 3 आइटम्स हैं, मतलब 3 सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ही है. इसको कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. सो इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ डायबोरेन 4 1 2 3 4 2 center 2 electron bonds are present and 3 center 2 electron bonds are present. इस तरह यहाँ पे ये बॉन्डिंग होगी. यहाँ पे ये जो अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल है इट इज यूज्ड लाइक दिस. हो गया. नाउ अब ये जो बॉन्ड है BHB, इसको कहा जाता है ब्रिज्ड हाइड्रोजन और ब्रिज्ड बॉन्ड, और इट इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड्स. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड्स. ये बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन 1 2 3 4 हो गया 4. नाउ दिस banana bond it is represented like this. यहाँ पे ये हाइड्रोजन. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन B2H6. ठीक है. सो इट इज द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन. ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे. इट इज द बॉन्डिंग इज लाइक दिस, जिसमें हमको ओवरलैपिंग कैसे होगी वो आपको दिखाना रहेगा. और इसमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स आपको मिलेंगे. एक बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 97 डिग्री का और दूसरा बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 120 डिग्री का. सो इट इज अबाउट द मॉलिक्यूल डायबोरेन. नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज SiO2. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट इज कॉमनली नोन एज सिलिका. इसका कॉमन नेम आएगा सिलिका. सिलिका का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे, योर आंसर इज SiO2. एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवैलेंट 3-dimensional network solid. It is 3-dimensional covalent network solid in which each silicon atom is covalently bound in tetrahedral manner to 4 oxygen atoms. The structure is like this. देखिए ये सिलिकॉन 1, यहाँ पे tetrahedral arrangement रहेगा. These are arranged tetrahedrally. These oxygen atoms are tetrahedrally attached to central silicon atom. Each silicon is covalently bonded in tetrahedral manner to 4 oxygen atoms, and the crystal contains 8 membered rings having alternate silicon and oxygen atoms.
ये सिलिकॉन ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा सिलिकॉन। अब इसके कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे? इट इज कनेक्टेड टू अदर 4 ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे ये चेन इट एक्सटेंड्स इन ऑल डायमेंशंस, ठीक है। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इट इज नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल। जो नाइट्रोजन है इट इज ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। जो सिलिकॉन है इट इज ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट। बोरॉन एल्यूमिनियम इट इज ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला है HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड। इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे है, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। इसमें द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। It is the structure of nitric acid. 1, 2 lone pairs of electrons, 1, 2, 3 lone pairs of electrons. नेगेटिव चार्ज इस पे देना है आपको, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बताना है। इसके ऊपर है आपको 2 lone pairs of electrons. Now इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। 1, 2 lone pairs of electrons, here positive sign, 1, 2, 3, here 1, ये 2 lone pairs of electrons, इधर नेगेटिव साइन दिखाना है आपको। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ these 2 are resonating structures of nitric acid molecules. This bond it is of the order of 120 degree. This bond is of the order of 130 डिग्री एंड दिस बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड की लंबाई रहेगी, बॉन्ड लेंथ इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 140.6 पिकोमीटर। इट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा उसमें आपको रेजोनेंस हाइब्रिड इट इज लाइक दिस। NO इट इज H, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ डॉटेड लाइन और यहाँ पे डॉटेड लाइन, बस इस तरह आपको दिखाना रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन दिखा देंगे आप। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप नहीं शो करेंगे तब भी चलेगा। दिस बॉन्ड लेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 140.6 पिकोमीटर। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 96 पिकोमीटर। दिस एंगल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 130 डिग्री। सो इट इज अबाउट द नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल। नाउ next molecule is orthophosphoric acid, phosphorus. It is one of the element of group number 15. Orthophosphoric acid or phosphoric acid, its formula is H3PO4. It is known as phosphoric acid. Phosphorus forms number of oxy acids and जो ये phosphoric acid है it is strong mineral acid and it is toxic in nature. यहाँ पे जो सेंट्रल फॉस्फोरस रहेगा, दिस सेंट्रल फॉस्फोरस एटम इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पे ये फॉस्फोरस इट इज P डबल बॉन्ड O इट इज H, OH। ये जो बॉन्ड रहता है ये ऐसा बॉन्ड इट इज बिहाइंड द प्लेन, इट इज बिहाइंड द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये जो बॉन्ड रहता है इट इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन और एट द अपर साइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर हम प्लेन ऐसा लेंगे इस तरह का तो नीचे बॉन्ड आएगा जो बिलो द प्लेन ये वाला आएगा एंड अपर साइड पे जो आएगा दैट इज दिस बॉन्ड। और अगर प्लेन हम इस तरह लेते हैं बिहाइंड द प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन बनता है सेक्शन ए में एंड इट इज फॉर 1 मार्क। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है। ओके, थैंक यू।